Okay, so let's start the web technology subject, that is HTML. With this particular term HTML, that is always all of you know this term and very I think very well known to this topic actually HTML. Basically, the web page has two types. First, you have to learn this before going to this HTML and all these things. First, you have to learn that what the web page based on two type. Web page has two types. One is static web page, one is dynamic web page. Hello sir. No existing I think. हाँ yes बोलो. हेलो. हेलो. पूरे बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा सर, नहीं पता चल रहा आवाज. सबके साथ. Yes sir. यस सर. अब ठीक है सर, अब ठीक है सर. आप ठीक है? यस सर, अब ठीक है. Okay. So now basically web page has two types. One is static web page, one is dynamic web page. Okay, what do you know by static and dynamic web page? Anyone of you, please tell me. You know this topic, I know, and that's why I am asking directly the questions. What is static web page? What is dynamic web page? Please, anyone can tell me? Any one of you? What is static web page? What is dynamic web page? Sir, static web pages are very simple and it is written in only HTML and CSS only. That is not a definition. Okay, you know that is the key. Okay, this is only created by this HTML and CSS. That is okay, well known. But what is exactly meaning of the static and dynamic? सर स्टैटिक में हम लोग चेंज नहीं कर सकते और डायनामिक में चेंज कर सकते हैं. When चेंज नहीं कर सकते. देखो तुम्हारा जो आंसर होता है, आई नो दैट यू नो दिस आंसर. तो बैकएंड से कनेक्टेड रहता है तो वो डायनेमिक होता है, अदरवाइज वो स्टैटिक रहता है. Not always. Not always. Slightly correct, but not always. Anyone else? Anyone else? जो चेंज जो अभी बोले थे हम चेंज कर सकते हैं और चेंज नहीं कर सकते हैं. कौन बोला था ये? कौन बोली थी? Ankita, right? Okay, now Yes, sir. my answer is when. Actually, make it complete. Make it complete. मैं बोल रहा हूँ तुम लोग का आंसर्स आई नो तुम लोग सब जानते हो, लेकिन ऑर्गेनाइज करके बोल नहीं पा रहे हो. That's clearly you have to understand when you have to, you cannot change. अगर जो प्रोग्रामर है वो तो स्टैटिक भी चेंज कर सकता है, डायनामिक भी चेंज कर सकता है. What is static and what is dynamic? What is static web page? What is dynamic web page? सर स्टैटिक में जो वेब पेज रहता है वो डायनामिक में अकॉर्डिंग टू द यूजर Again, और आवाज नहीं आया मेरे पास. But again, still, please बोलो, अच्छा से बोलो एक बार फिर से.
सर जो डायनेमिक है ना, डायनेमिक में वेब पेज का जो भी कंटेंट रहता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर, लेकिन स्टैटिक में हम लोग चेंज नहीं कर सकते खुद से। मतलब वो प्रोग्रामर तो कर सकता है लेकिन जो यूजर रहता है वो नहीं कर सकता है। that's why I am telling कि अंकिता प्लीज अपना वर्ड को जो है ये कंप्लीट करो। दैट इज द थिंग यूजर वर्ड वहां पे होना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ प्रोग्रामर कैन चेंज एनीथिंग, and whenever it is fetching the server, that means server से जब मेरे पास आ चुका है पेज, during that moment I cannot change anything, but dynamic में according to user, according to me I can change. According to user I can change और according to user I cannot change. that is user के ऊपर dependent नहीं है static web page, that is totally dependent on programmer कैसे इसको ऑर्गेनाइज करता है, प्रोग्रामर ही उसको चेंज कर सकता है स्टैटिक वेब पेज, बट डायनामिक वेब पेज अपने हिसाब से तुम खुद चेंज कर सकते हो। नाउ मैं अमीशा का जो पॉइंट था जो बैक एंड से कनेक्टेड है, वही सिर्फ स्टैटिक और डायनामिक है, मतलब डायनामिक है। जो बैक एंड से कनेक्टेड नहीं है वो डायनामिक नहीं है। मान लो तुम कोई थीम यूज कर रहे हो या कोई थीम चेंज कर रहे हो, दैट इज नॉट मैंडेटरीली कनेक्टेड विद डेटाबेस, that may be connected with some multiple क्या बोलेंगे, some other applications। हमेशा are you getting my point? मान लो फेसबुक में तुम चेंज कर रहे हो, तुम्हारा फेसबुक में तुम अपना स्टेटस चेंज कर रहे हो या अपना कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या सारे इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है बैकएंड में, एवरी इंफॉर्मेशन, या तुम अपना लुक्स को चेंज कर रहे हो, फेसबुक का लुक्स है, थीम को चेंज कर रहे हो, दैट इज आल्सो ए डायनामिक वेब पेज, दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद डेटाबेस। नो, नॉट ऑलवेज। गेटिंग इट अमिता? Yes, sir. So you're slightly correct, you are मैक्सिमम जगह पे जो डायनामिक वेब पेज है वो डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है, दैट इज वेरी वेरी ओके, बट नॉट ऑलवेज। कहीं कहीं पे सिर्फ स्लाइड डिफरेंस के लिए हम डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं करते हैं। हो सकता है कोई एप्लीकेशन के थ्रू कर रहा हो सकता है कोई दूसरा चीज, बट अकॉर्डिंग टू यू आर चेंजिंग दिस ना, दैट इज ऑल्सो ए डायनामिक वेब पेज। तो डायनामिक वेब पेज का बेसिक डिफरेंस ये है स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक यूजर कैन चेंज दिस, यूजर कैन नॉट चेंज दिस वेब पेज अकॉर्डिंग टू हिज नीड, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामर। व्हाटएवर प्रोग्रामर गिव्स टू यू, दैट पेज इज विजिबल एंड दैट पेज ओनली यू कैन एक्सेस। You cannot change the looks, even not the any line of this particular code. So वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। That is basically static web page. And dynamic web page, whatever I need, I can change my profile, I can change my papers and everything. So यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बता दूं, फेसबुक का जो सबसे पहला पेज आता है दैट इज स्टैटिक वेब पेज, और फेसबुक के अंदर में जब लॉगिन आईडी पासवर्ड देके तुम कनेक्ट कर रहे हो, उसके बाद जो पेज आएगा दैट इज ए डायनामिक पेज, बिकॉज उसके बाद तुम अपना वैल्यू, सबका अपना वैल्यू आता है, अपना पर्टिकुलर एक वैल्यू को लेके अपने पास पहुंचता है। तो दैट इज ए स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज डिफरेंस। नाउ ये स्टैटिक वेब पेज का बेसिक जो लैंग्वेज है, स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए जो बेसिक लैंग्वेज हमको जरूरत पड़ेगा दैट इज HTML makes basic static web page. So dynamic web page में भी HTML यूज होगा, but only for, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, static web page and dynamic web page, ये दोनों में that specifically you have to understand this, कि
HTML कोई एक आंसर दिया था, जो पेज सिर्फ HTML और CSS से बना हुआ है वो स्टैटिक वेब पेज है. That is also slightly okay. That is also a good answer I think. So HTML और CSS से सिर्फ अगर बना हुआ होगा वो स्टैटिक वेब पेज. और डायनामिक वेब पेज में HTML ये CSS के साथ साथ जावास्क्रिप्ट, JSP, PHP कुछ भी यूज हो सकता है. कोई एक डायनामिक कंटेंट्स के लिए कोई एक डायनामिक लैंग्वेज की भी यूज करना होगा. सो हियर HTML basically used for designing purpose. That is your main thing. ये एकदम दिमाग में नहीं रहना कि स्टैटिक वेब पेज सिर्फ HTML पेज से ही बनता है. नो, HTML पेज दोनों जगह यूज हो सकता है. स्टैटिक में भी यूज होगा, डायनामिक में भी यूज होगा, बट ओनली फॉर डिस्प्ले पोर्शन. और एनी अदर वे, अगर अदर वे में मैं इसको लिखूं, ओनली फॉर स्टैटिक पोर्शन वी कैन डू विद HTML लैंग्वेज. स्टैटिक पोर्शन मतलब डायनामिक में भी ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग यू कैन चेंज. सारे चूज तुम्हारे हाथ में नहीं होता है. तुम सिंपली एक सोचो, या फेसबुक में, जैसे मान लो फेसबुक खोले, तुम अपना मोबाइल में ही फेसबुक खोले, ऊपर में जो टैब्स आता है, पहले प्रोफाइल का, उसके बाद वीडियो का, उसके बाद कुछ गेम का, उसके बाद कुछ, ये जो टैब्स बन के आता है ऊपर में, दैट कैन यू चेंज. दैट थिंग कैन यू चेंज, बोलो. नो. सो दैट एक्चुअली दिस यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये इसका कुछ पोर्शन स्टैटिक रहता है, कुछ पोर्शन डायनामिक होता है. डायनामिक वेब पेज का ऐसा नहीं है कि डायनामिक वेब पेज का एवरी कंटेंट इज डायनामिक. हर कंटेंट डायनामिक नहीं है अगर तुम उसको डायनामिक ना बनाओ. सो इस डायनामिक पोर्शन का भी, डायनामिक वेब पेज का भी जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कि तुम नहीं कर सकते हो, दैट पोर्शन एक्चुअली गिव्स बाय दिस HTML लैंग्वेज. So HTML basically what purpose it is used? It is used for designing purpose. Only for designing part HTML will be used. That thing first you have to understand. HTML, that very basically you have to understand कि HTML only for designing. और कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ डिजाइन कर सकता है. नाउ अपना सब रोल नंबर लिखना स्टार्ट कर दिए. ओके, नाउ यूजिंग HTML you can create a web page with text, graphics, sound, video, anything. So it's basically full form is hypertext markup language. What is the meaning of hypertext markup language? Can anyone tell? What is the meaning of hypertext markup? What is the meaning of that? Can anyone tell? Anyone of you, please go ahead. Hypertext markup language. Why hypertext markup? Any idea of it? बोलो, anyone of you? अरे तुम लोग बोलोगे तब ना आगे बढ़ेंगे. ये बहुत आसान चीज है. Why hypertext? Anyone of you? हाँ बोलो. Sir, in HTML, sir, hypertext means machine readable text and markup means to structure it in a specific format. एक बार फिर से, बहुत अच्छा आंसर है. एक बार फिर से बोलो. Sir, in HTML,
hypertext means machine readable text and the markup means to structure it in a specific format. मीनिंग समझाओ। ये तो शायद तुमको लग रहा है कि कुछ गूगल करके तुम बोल रहे हो, आई थिंक पता नहीं, अगर तुम जानते हो बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसका मीनिंग मत समझाओ मुझे। तो मशीन कोड में जो टेक्स्ट होगा उसको हम लोग समझ, और मार्कअप मीन्स सर जो डिजाइनिंग का प्रोसेस हो। एनीवन एल्स इसका ये जो बोला, इससे तुम अंदाजा करके कोई और अगर कुछ बोलना चाहोगे। मैं बैठा हूँ, बोलो। सर मार्कअप में तो सर ये बताएगा कि सर वो वेब पेज को कैसे दिखाना है। आप थोड़ा सा आप मुझे मीनिंगफुल लगा तुम्हारा बात। बोलो कोई और। मैं इसको लेना चाहूंगा कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाई दिस इज हाइपरटेक्स्ट एंड व्हाई दिस इज मार्कअप। ये कभी तुम लोग सोचे नहीं होंगे कि हाँ इस तरह का कुछ हो सकता है। ये नाम दिया गया था बट ऐसा नहीं है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप सोच के नाम दिया गया। व्हाई दिस इज हाइपरटेक्स्ट, मतलब एक हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि प्रेजेंटिंग समथिंग, मतलब टेक्स्ट को कुछ प्रेजेंट करने का तरीका। सिंपल, इन नॉन लीनियर वे टू प्रेजेंट समथिंग। ये एक टेम्पररी वर्ड है। मतलब नॉन लीनियर वे टू, मतलब क्या बोले, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बताओ। नॉन लीनियर का मतलब होता है सिंपली कि कोई रैंडम वे, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है। तो ये मैं अब बताऊंगा। जो भी एक देखो, जैसे कि तुम HTML तुम वर्ड में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, और अगर कैपिटल स्मॉल मिक्सर करके भी लिख सकते हो। जो टैग्स होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो टैग्स होता है वो टैग्स तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बट उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये टैग है। That's why it is called hypertext। मतलब कुछ किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए हमको कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। हम कैसे भी इसको ऑर्गेनाइज करें, जितना दूर वो समझ में आएगा, जितना दूर उसको समझ में आएगा, उतना दूर वो करेक्ट करेगा। That is machine readable code. That's why it is called machine readable code. That means machine उस चीज को रीड कर रहा है, उस चीज को समझने का कोशिश कर रहा है। जैसे कभी कभी देखना, तुम HTML शुरू कियो खत्म नहीं किए तो भी HTML रन कर जाता है, या कहीं पे तुम जो एक पर्टिकुलर टैग शुरू कियो बस खत्म नहीं कियो तो भी वो रन कर दे। जितना दूर तक उसको समझ में आएगा उतना दूर तक वो रन करेगा, बट उसको नहीं मिलेगा एंड। तो जहां पे एंड करना था वो एंड नहीं करेगा वहां, बट वो रन करेगा। तो दैट मीन्स ये एक मशीन रीडेबल टेक्स्ट है। तुम जो टैग लिखोगे, जो लैंग्वेज में टैग लिखोगे, दैट इज मशीन रीडेबल। तो ये एक नॉन लीनियर वे है टू रिप्रेजेंट समथिंग। So that two things comes together and it makes a hypertext. Getting it or not? And markup का मतलब क्या बोला था पांडे? What is the meaning of markup? तो जो हम लोग HTML में लिखे हैं उसको कैसे हम लोग वेब पेज में दिखा सकते हैं, मतलब क्या लिखा हुआ वो चीज डिस्प्ले कराना सर, मतलब डिस्प्ले करना, दैट इज मार्कअप। मतलब कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो उसको डिस्प्ले कैसे हम करवाएंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करना तुम्हारा काम है, ऑर्गेनाइज कराना तुम्हारा काम है। दैट मींस वो इसीलिए इसको बोला जाता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप
मतलब तुम मार्कअप करो। हाइपर टेक्स्ट, ये लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट है, दैट मींस मिसिंग रीडेबल टेक्स्ट है, मशीन इसको रीड कर पाएगा बट इसको ऑर्गेनाइज करना तो खराब करना। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप, सो दैट इज द थिंग, मशीन रीडेबल टेक्स्ट मतलब वो तुमको, बट जैसे कि तुम एंड नहीं किए हो, उसको समझ में आ गया कि हाँ तुम शुरू किए हो, तुम उसको कर लेगा, लेकिन उसके बाद जहाँ पे सेंटर आना था उसके पहले सेंटर, उसके बाद में सेंटर खत्म करना, ये चीज ऑर्गेनाइज कराना तुम्हारा काम है। ये ऑर्गेनाइज वो नहीं कर सकते, दैट इज मार्क अप लैंग्वेज, तुम्हें मार्कअप करवाना है। सो दैट इज द थिंग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हाइपर टेक्स्ट जरूरी है, हाइपर टेक्स्ट। तो इसीलिए हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से हम आगे बढ़ रहे हैं कि दिस इज ए टैग, प्रीडिफाइंड टैग्स आर दिस टेक्निकल टर्म इज टैग। जो टैग क्या करेगा, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को जनरेट करेगा। दैट मींस टू एनहांस HTML प्रोग्रामिंग you must know tag first. What is tag? Tag basically it closes the greater than and less than एक कोड के अंदर तुम्हें कुछ टर्म लिखाया रहेगा, दैट इज ए टैग। ये टैग को समझाने के लिए दिस पर्टिकुलर सिंबल विल बी यूज्ड, दिस पर्टिकुलर सिंबल विल बी यूज्ड, लेस एंड ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब तुम लोग जानते हो कि टैग्स क्या हो सकता है, कहाँ कौन सा टैग यूज हो सकता है। सो एवरी टैग यू नो आई थिंक, बट अगेन टैग हैज बेसिकली टू टाइप्स अगेन, one is paired tag, another is unpaired tag. Paired tag means anyone of you? Paired tag means बोलो, बोलो 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 बोलो। Paired tag means there are some tags जिसका क्लोज करना जरूरी है, मस्ट, यू मस्ट क्लोज दिस टैग, दिस इज कॉल्ड पेयर्ड टैग। अनपेयर्ड टैग मींस क्लोज करना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, tr td, ये सब जो भी HTML बॉडी हेड, ये सब पेयर्ड टैग है। दैट मींस देयर आर सम टैग्स, जो कि ये जो टैग्स है, ये टैग्स बॉडी, HTML, हेड, जो भी तुम लिख रहे हो, इसको क्लोज करना जरूरी है। कहाँ पे शुरू है, कहाँ पे खत्म, खत्म में ये स्लैश देके उस टैग का नाम लिखना पड़ता है। दैट आई थिंक यू नो। सो दैट दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड पेयर्ड टैग। और एक टैग में नाम बोल रहा हूँ, जैसे कि HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल, जैसे कि तुम HR दिए हो, इसको खत्म करने का जरूरत नहीं है। HR मतलब वो वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा, इसको कोई एंड करने का जरूरत, HR टैग लिख के फिर स्लैश देके HR लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। जहां पे शुरू होगा वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन के खत्म हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग, द मीनिंग ऑफ अनपेयर्ड टैग्स। टैग मींस पेयर्ड टैग्स, जो कि खत्म करना जरूरी है। कुछ टैग्स है जो अनपेयर्ड है, दैट मींस खत्म करना जरूरी नहीं है, उसको वो हम बोलेंगे अनपेयर्ड टैग्स। तो देयर आर, अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेसिक HTML तुम जानते हो। सो यहाँ पे फर्स्ट फॉन्ट टैग, बी टैग, बी क्या करेगा, बोल्ड बनाएगा। सी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, यूज सम कमेंट, एक्सपेक्ट द क्लोजिंग टैग कंटेन द एडिशनल फॉरवर्ड स्लैश दिस। एक स्लैश देके फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद देके जैसे मान लो बॉडी को खत्म करने के लिए एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद बॉडी वहां पे ओपन होगा। तो ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ टैग्स। तुम लिखोगे एक, और इसके अंदर हेड अगर तुम लिख, जैसे बी फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेशन बी इज ए टैग, उसको खत्म करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। बी किस लिए यूज करते हैं, बोलो बोलो बोलो। अरे तुम लोग नहीं बोलोगे तो हम बोलते जाएंगे, सब तुम लोग जानते हो। बोल्ड के लिए, बोल्ड के लिए
बोल्ड में बोल्ड में लिखने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड में लिखने के लिए. दिस इज वेरी इजी थिंग. सो हियर HTML tags within other HTML tags you must close the nearest tag first. This is the most important thing जो कि तुम्हें समझना है. So nested thing you have to follow in HTML. That means HTML is a nested language. इसलिए बोला जाता है HTML language is a nested language. That means कभी भी जो पहले खत्म हो रहा है, जैसे कि जो फर्स्ट लास्ट में शुरू हो रहा है उसको पहले खत्म करना है. This thing you must follow. I, this is italic. I for italic. H1 for heading 1. This is heading 1. I italic में ये नेशन लिखेंगे, ये स्लैश I लास्ट में गया है टैग, उसको पहले खत्म करना जरूरी है. So that means nested of things, nested of tags जरूरी है. Nesting of tags is very very mandatory. Nested मतलब क्या है तुम जानते हो, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, CV पढ़ा चुके हैं, उसमें भी nested लूप का मतलब क्या है, लूप के अंदर लूप, फॉर के अंदर फॉर, बट नेस्टेड फॉर के अंदर फॉर. दैट मींस फॉर के अंदर जब फॉर लिख रहे हो, जो इनसाइड वाला फॉर है उसको क्लोज करना फर्स्ट जरूरी होता है, उसके बाद आउटसाइड वाला को क्लोज करना जरूरी है. तो यहाँ पे भी वही चीज फॉलो होगा. H1 अगर फर्स्ट खुला है तो वो लास्ट में जाके ये, अगर फर्स्ट खुला है वो लास्ट में जाके ये क्लोज होगा. तो जो लास्ट में खुलेगा वो क्लोज फर्स्ट होगा. दैट इज द थिंग नेस्टेड टैग. ये HTML हमेशा फॉलो करेगा. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. दिस इज वेरी बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. फर्स्ट HTML हेड, टाइटल, उसके बाद हेड क्लोज. टाइटल के अंदर जो भी कंट्रोलिंग पार्ट होगा वो टाइटल हेड के अंदर होगा. जो भी कंट्रोलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर HTML ये होगा हेड के अंदर. तो ये सिंपल ह्यूमन ब्रेन के तरह है. हम लोग का भी जो भी कंट्रोलिंग, हम लोग का ह्यूमन बॉडी में भी जो भी कंट्रोलिंग एरिया है वो हेड के अंदर है. देखो तुम सिंपली आँख, कान, नाक, ये सब जो कंट्रोल करता है, तुम्हारा जो फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, ब्रेन, ये सब चीज जो फीलिंग्स को तुम्हारा कंट्रोल करता है, सब एवरीथिंग इज कम्स अंडर दिस हेड पार्ट. सो हियर आल्सो जो भी कंट्रोलिंग पार्ट होगा वो होगा हेड के अंदर, बट जो आपका सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए होगा वो होगा बॉडी के अंदर. सिर्फ डिस्प्ले पार्ट और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा तुम्हारा बॉडी के अंदर. सो दैट इज द थिंग. दिस इज हियर यू इंक्लूड द टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड वेब पेज, ऑल दिस थिंग बॉडी के अंदर हम लोग जो भी विजिबल करना चाहते हो तो वो चीज होगा बॉडी के अंदर. HTML हेड के अंदर होगा सारे कंट्रोलिंग पार्ट एंड देन बॉडी फर्स्ट. सिंपली देखो HTML फर्स्ट ओपन, हेड स्टार्ट. दिस इज बेसिक फॉर्मेट. अभी बहुत सारे वर्जन आ गया है तो यू कैन इंक्लूड वर्जन आल्सो HTML के बाद वर्जन. सो दैट कम्स लेटर, बट दिस इफ यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग दैट विल वर्क. तो एक HTML हेड, टाइटल खत्म हुआ, उसके बाद हेड क्लोज हुआ, फिर नेस्टेड पार्ट भी खत्म हो रहा है. देखो हेड जैसे ही खत्म हो उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो रहा है. HTML के अंदर ही बॉडी स्टार्ट हो रहा है, बॉडी खत्म हो रहा है, उसके बाद HTML खत्म हो रहा है. तो जो क्लोज ओपन होगा शुरू में उसको क्लोज करना है पहले. तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ HTML लिखने का बेसिक फॉर्मेट ये है. और जो भी कंट्रोलिंग पार्ट होगा वो हेड में होगा, जो भी डिस्प्ले वाला पार्ट होगा वो बॉडी के अंदर होगा. दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ टाइटल टैग. टाइटल मींस जो तुम्हारा वेब पेज डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले करेगा. ये वेब पेज जैसे ही ओपन करेगा, जैसे मान लो तुम फेसबुक ओपन कर रहे हो तो वहां पे फेसबुक ओपन ऊपर में दिखता है ना फेसबुक. So that thing actually comes under this title tag. कि जो तुम्हारा डिस्प्ले करेगा, वेब पेज का नाम जो डिस्प्ले करना चाहते हो वो तुम्हारा टाइटल टैग में होगा. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग के पास बहुत सारे टैग्स हैं. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग के पास बहुत सारे टैग्स हैं. दैट मींस टेक्स्ट को इटैलिक, डायरेक्टली इटैलिक, बोल्ड सब चीज कर सकते हो. बट उसके साथ साथ फॉन्ट एक टैग है जिस फॉन्ट के अंदर उसका साइज वगैरह हर चीज भरा सकते हो. फॉन्ट अगर यूज कर लोगे तो उसके अंदर जितना सारे फॉन्ट का जितना सारे ऑप्शन रहता है सब उसके
टाइम्स न्यू रोमन होगा, आपकी एरियल होगा, आपकी जो टाइप भी तुम चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का फॉर्मेट बोल्ड होगा कि इटैलिक होगा वो चेंज कर सकते हो. सो एवरीथिंग कम्स अंडर दिस फॉन्ट टैग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर. बट जो उसके अलावा फॉन्ट के अलावा भी एक अलग अलग इंडिपेंडेंट टैग्स भी हम लोग के पास है, जो कि 6 तरीके का हेडिंग को डिस्प्ले करता है. 6 तरीके का हेडिंग को डिस्प्ले करेगा, दैट इज H1, H2, H3, H4, H5. ये 6 तरीके का H6, ये H1 to H6 ये तरीके का एक हेडिंग है. उसके बाद ये हेडिंग के साथ साथ तुम्हारा बोल्ड है, इटैलिक है, ये सारे टैग अलग से बना दिया गया, बट फॉन्ट के अंदर बाकी सब आ जाएगा. ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट. So here bold, italic, underline के लिए U, P न्यू पैराग्राफ के लिए, BR नेक्स्ट लाइन के लिए, ये अलग से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पैड है ही. उसके साथ साथ फॉन्ट एक टैग है जिसको तुम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में पूरी तरह यूज कर सकते हो. ये ऑप्शन उस फॉन्ट में भी है. So here font, you can see font face, font size, and everything. फॉन्ट कलर भी है जिसमें तुम डायरेक्ट कलर लिख के रेड करके चेंज कर सकते हो फॉन्ट. हेडिंग H1 to H6 मैं बोला था, H1 इज बिगर वन, H6 इज स्मॉलेस्ट वन. H1 to H6 टोटल हेडिंग के लिए अलग फॉर्मेट किया हुआ है, अलग टैग्स बना हुआ है. नाउ अलाइनमेंट टैग, aligning the text. This is align equals to center, align equals to left, align equals to right. So ये कौन सा साइड से टेक्स्ट डिस्प्ले होगा ये भी देने के लिए अलाइनमेंट एट्रीब्यूट है. अलाइन भी एक एट्रीब्यूट है जो इस दिस नाउ वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the difference between tag and attribute. This is where this is tag और उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो होगा एट्रीब्यूट. So align is a attribute. जैसे कि फॉन्ट में हम लोग देख रहे थे, फॉन्ट में सिंपली फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड, ये जो फॉन्ट है ये तुम्हारा टैग है, ये कलर इज इक्वल टू एट्रीब्यूट. कलर जो है ये एट्रीब्यूट है. गेटिंग इट? फॉन्ट इज ए टैग, कलर इज ए एट्रीब्यूट. सो दैट मींस फॉन्ट का एट्रीब्यूट है ये कलर, कलर एक अलग टैग नहीं है. ओके, सो हियर आल्सो अलाइनिंग द टेक्स्ट, दैट मींस टेक्स्ट राइट साइड में डिस्प्ले होगा, लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होगा, सेंटर में डिस्प्ले होगा, उसके लिए भी अलाइनिंग टेक्स्ट बना हुआ है. अलाइन इक्वल्स टू सेंटर करने पे यूज काम करते हैं. कमेंट सेक्शन. सो ये अगर सी वेरी केयरफुली यू अंडरस्टैंड, ये अगर तुम यूज कर रहे हो उसके बाद तुम कुछ भी लिख रहे हो, दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इनसाइड द कोडिंग पार्ट. दैट मींस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसके यूज करके टैग के बाद, सो हियर यू कैन सी हियर, ये अगर तुम यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कभी कभी तुमको याद रखने के लिए कुछ चीज लिखने का जरूरत पड़ेगा, तो ये टैग तुम यूज करोगे. ये टैग मतलब कोई चीज यहाँ पे अगर यूज है तो ये यहाँ पे कुछ भी तुम लिखो, यहाँ पे कुछ भी तुम लिखो, वो चीज डिस्प्ले नहीं होगा, वो चीज कब कोई पर्टिकुलर कोडिंग में आएगा ही नहीं. कोडिंग पर्टिकुलर कोडिंग में वो वर्क ही नहीं करेगा. एज ए कोडिंग वो ट्रीट ही नहीं होगा. एज ए कोडिंग वो ट्रीट ही नहीं होगा. So it is simple exclamatory sentence, and उसके then you have to put the sentence, or you have to put the any English thing, any English written thing, then it is not participate inside the coding part. So coding में ये किसी भी तरह के participation नहीं होगा. That is a comment section. That is very important. जब very big program you have to write, very big program, whenever you have to write very big program, then this particular thing will play a very vital role, very vital role. Okay, so now page formatting, bg color is the page color. Even base font size equals to n. That is also a
बेस फॉन्ट इज ए टैग, साइज इक्वल्स टू एन, दैट मींस तुम्हारा जो टेक्स्ट होगा, जो भी तुम्हारा पूरा पेज में, सिंगल एक पूरा पेज के लिए ये एप्लीकेबल हो जाता है। बीजी कलर मींस व्हेनेवर यू अप्लाई बीजी कलर इनसाइड द बॉडी टैग, बीजी कलर इज एन एट्रीब्यूट, बॉडी इज a tag, so inside it when you use this total page have becomes that particular environment, that means that particular color total page will take bg color. Okay, text color is also there, text color is also there, text equals to something, तुम लिखोगे text color भी change हो जाएगा। so पूरा but body के अंदर अगर तुम लिख रहे हो तो then ये पूरा जो पेज है सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। नाउ एग्जांपल सी, सो इस एग्जांपल में ये जो बीजी कलर ब्लैक होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा, टेक्स्ट का राइट होगा व्हाइट से, टेक्स्ट लिखेगा व्हाइट से, एंड बेस फॉन्ट साइज हो जाएगा 7, सो दैट मींस जो भी यहाँ डिस्प्ले होगा, दिस इज ये जो भी डिस्प्ले होगा ये पूरा बीजी कलर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाके डिस्प्ले होगा। ये ब्लैक व्हाइट में लिखेगा, ये टोटल व्हाइट में लिखेगा, और साइज होगा, फॉन्ट साइज होगा दिस, दैट इज एप्लीकेबल फॉर होल वेब पेज। ओके, सो यहां तक रहने देते हैं। नेक्स्ट ये HTML तुमको एक मैं HTML टास्क में दूंगा नेक्स्ट, अब इस वीक को तो क्लास नहीं है, क्लास नहीं होगा मेरा क्लास, मैं जा रहा हूँ इसमें इंटरव्यू में, अब अगले वीक में ही आके मैं क्लास लूंगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हें टास्क देते रहूंगा, इसमें तुम लोगों को करना है। दैट मीन्स कोई HTML पेज बनाने के लिए मैं एग्जांपल पेज दूंगा, तुम लोगों को ये HTML पेज